everyone, welcome to the Diligent Runners. In this video, we'll start with the topic climate of India. So, India experiences a monsoon type of climate है ना ये पता होगा आपको already. Monsoon type climate है इंडिया में. Then it is characterized by seasonal reversal of winds and distinct wet and dry seasons. Its climate shows regional diversity due to variations in latitude, altitude, relief, and monsoonal circulation. So we'll just look at these questions first of all with reference to the Indian Ocean dipole. Sometimes mentioned in the देखो ये वाला थोड़ा technical question है, so I'll do this after we have read the theory. It will be easier to do the question then. Both of the questions we'll be doing them after we have done the theory. So factors determining the climate in India. क्या क्या है? First of all, there will be some factors related to the location and the relief. ठीक है. Then there will be factors related to air pressure and winds. So location और relief से जो भी factors related हैं, we'll talk about those first of all. जैसे temperate zone, इसका theory पढ़ के then we'll see the diagrams simultaneously. So factors related to location and relief, एक तो है latitude. So anything south of the Tropic of Cancer will be the tropical zone, whereas north of the Tropic of Cancer will be the warm temperate zone. ठीक है. ट्रॉपिकल जोन में देयर विल बी हाई टेम्परेचर एंड स्मॉल एनुअल एंड डेली रेंज रहेगा. whereas north of the tropic there will be a greater seasonal contrast and higher annual and daily range of temperatures. ठीक है. smaller range मतलब कि it is generally hot. So if you say South India वगैरह में the temperature is generally hot, whereas in temperate regions we have more diurnal range there. फिर Himalayan mountains, they act as a climatic divide. They block the cold winds from Central Asia and force monsoon winds to rise, and thus results in orographic rain on monsoons. ठीक है. This helps retain monsoon within the subcontinent. ठीक है. So क्या है यहाँ पे Himalayas है ना. So they do not let the monsoon winds to go on to the other side. Tibet side पे नहीं जाने देते हैं. Instead यहाँ पे ही orographic rain होने लग जाती है and monsoon is retained within the subcontinent. Tibet side that is by a desert. ठीक है. Then distribution of land and water. Land heats and cools faster than water because it has lower specific heat. ठीक है. Then differential heating क्या है? Seasonal pressure differences की वजह से it may result in reversal of monsoon winds. ठीक है. So different वही seasonal pressure differences, all of this results in the changes in the monsoon system. Distance from the sea, continentality भी बोलते हैं. So coastal areas में there is slightly equable climate because there will be a small temperature range. ठीक है. क्योंकि coastal area है तो moderating effect of the sea रहता है उस केस में. And when you move to the interior areas, there is an extreme climate which is present, and there will be a high seasonal contrast. For example, in Delhi, Kanpur, all of these regions, there are extreme climates there. ठीक है. Even Madhya Pradesh for that matter. Now altitude. So the temperature decreases with height, as you might be knowing, है ना, and the mountain regions are cooler than the plains. ठीक है. So this is easy to remember. आगरा और दार्जिलिंग का अगर देखो, they have a similar latitude but the temperatures are very different, and that is primarily due to the altitude. Then relief, that is the physiography. It influences the wind direction and rainfall distribution. ठीक है. तो विंडवर्ड साइड पे, माउंटेन्स की विंडवर्ड साइड पे वी विल बी हैविंग हैवी रेनफॉल, वेराज विंडवर्ड साइड्स जैसे कि वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट्स के ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स यू विल हैव वेरी गुड रेनफॉल, वेराज ऑन द राइट साइड यू विल बी हैविंग द लीवर्ड साइड, है ना, वहाँ पे इतना रेन शैडो रीजन रहेगा. ठीक है. सो एग्जाम्पल वही वेस्टर्न घाट्स और असम रीजन का दिया है, एंड लीवर्ड साइड का एग्जाम्पल इज द सर्दर्न प्लेट्यू. ठीक है. that falls in the rain shadow zone. Now factors related to air pressure and winds. So surface pressure and wind distribution. Seasonal pressure changes जो होते हैं land and sea के ऊपर, they control the direction of the monsoon winds. ठीक है. Surface pressure and wind distribution. Now upper air circulation भी होता है ना, it is influenced by global atmospheric systems, jet streams, etc.
and that also creates differences in the surface pressure. ठीक है. Then western disturbances and tropical depressions. So western disturbances primarily they happen in winter, है ना, वेस्टर्लीज की वजह से, एंड दे ब्रिंग रेनफॉल टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब साइड. ठीक है. एंड जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस है, दीज हैपन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड एंड दिस रिजल्ट्स इन साइक्लोन्स इन ओडिशा, हमारा जो ईस्टर्न पोर्शन है ना, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया देयर. ठीक है. एंड इट ऑल्सो इंटेंसिफाइज रेनफॉल ओवर इंडिया. नाउ वी लुक एट द इंडियन मानसून. सो मानसून जो वर्ड है, इट इज derived from the Arabic word monsoon, which means season. ठीक है. It refers to periodic winds that reverse direction seasonally. The southwest monsoon blows from sea to land, bringing heavy rainfall to India, while the northeast mountain blows from land to sea, thus mainly giving rain only to the southeastern coast of India. ठीक है. So what happens is, southwest monsoon में तो they had time to absorb moisture from the oceans and then go to the land, है ना, तो they are मॉइस्चर लेडन विंड्स. वेराज जो नॉर्थ वेस्ट मानसून है, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, वो वहीं से अभी घूम के आए लैंड के ऊपर से ही. दे गॉट डाइवर्टेड बैक, इनफैक्ट दे गॉट टर्न्ड बैक ड्यू टू द हिमालयाज एंड देन दे आर कमिंग बैक. ठीक है. तो लैंड से ही आ रहे हैं, सो दे डू नॉट कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. ठीक है. सो ओनली द साउथ ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु साइड में देर इज सम रेनफॉल बट नॉट मच. ठीक है. देन थ्योरीज क्या है मॉनसून, यहाँ पे वही दिया है कि इट इज़ अ कम्प्लेक्स climatic phenomenon. There is no single theory which fully explains it. And modern understanding क्या है, it is studied at a global scale. It is not merely regional. ठीक है. तो ये पता होना चाहिए कि there are various factors which affect monsoons. Now we look at the classical theory of monsoon. ठीक है. This is the core idea, and according to this, the monsoon is primarily due to the differential heating, है ना. सो दिस इज उसमें बस ये बोल रहे हैं कि ये लार्ज स्केल जो मानसून है, ये लार्ज स्केल लैंड और सी ब्रीज का मैकेनिज्म है. ठीक है. तो समर्स में क्या होता है, द सन इज ओवरहेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे द सन इज ओवरहेड, है ना. सो सन इज ओवरहेड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन समर्स. वहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएट अ वेरी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर एरिया बन जाएगा. ठीक है. सेंट्रल एशिया के ऊपर. देन साइमल्टेनियसली अ हाई प्रेशर विल बी क्रिएटेड ओवर अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, बिकॉज वहाँ पे ऊपर हाई प्रेशर है, तो लो प्रेशर है, तो नीचे हाई प्रेशर रहेगा. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, high pressure to low pressure, as we know the winds flow. ठीक है. So winds will flow from the sea to the land, and this results in heavy rainfall over the entire Indian subcontinent, and this is what monsoons basically are. ठीक है. ये है समर मानसून. देन विंटर मानसून में क्या होगा, द सन इज ओवरहेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, सो इट विल बी इन द सदर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. सो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, इट विल बी कोल्डर एज कम्पेयर टू हमारा साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट इंडिया, साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड इवन द सीज एज वेल. ठीक है. तो इससे प्रेशर रिवर्सल हो जाएगा. सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया विल बी हैविंग हाई प्रेशर, वेयर एज आर सीज, सी लाइक द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, यहाँ पे अरेबियन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, इन पे क्या रहेगा, इट विल बी अ रिलेटिवली अ लो प्रेशर जोन. एंड दैट इज बिकॉज जो सी है, सी हैज़ हायर स्पेसिफिक हीट, सो दे विल बी लूजिंग वेरी हीट वेरी स्लोली, सो दे विल बी हॉटर ड्यूरिंग द विंटर्स. ठीक है. तो ये सीजन वो हो गया, रिवर्स हो गया, प्रेशर रिवर्सल. सो विंड्स विल फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी, एंड दिस रिजल्ट्स इन अ ड्राई वेदर मोस्टली ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है. बिकॉज विंड्स आर फ्लोइंग अवे, है ना, उनका पहले मॉइस्चर भी नहीं है उनके पास, तो ऐसा भी नहीं कि बारिश हो जाएगी. ठीक है. नाउ दिस वॉज नोन एज द हैलीज थ्योरी. दिस वॉज गिवन बाय सर एडमंड हैली. ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. हैली कैसे करेंगे इनको लर्न, एडमंड, ही हैज़ गिवन अ वेरी ईजी थ्योरी. ठीक है. कि बस लैंड और सी ब्रीज का ही काम हो रहा है मानसून्स में, और कुछ नहीं है. ठीक है. दैट इज़ व्हाट ही हैड सेड, दिस वाज द थ्योरी ही हैड गिवन. सो देर आर सम क्रिटिसिजम्स ऑफ हिस थ्योरी, ड्रॉबैक्स भी हैं काफ़ी सारे. सो दिस द मेन ड्रॉबैक इज दैट इट इज़ ओवर सिंप्लीफाइड. ठीक है. इट डज नॉट
explain the entire system which is occurring. It cannot explain the sudden burst of monsoon. It does not explain the delay in onset of monsoon. एंड उसके ऊपर से डज़ नॉट एक्सप्लेन द स्पेशल अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं और पे कम बारिश हो गई, ठीक है? इट डज़ नॉट एक्सप्लेन दैट इवन। इट इग्नोर्स द अपर एयर सर्कुलेशन एंड जेट स्ट्रीम्स कम्प्लीटली, ठीक है? उनके बारे में भी बात नहीं हो रही है। सो दे देन अ मॉडर्न थ्योरी वॉज ब्रॉट इन। सो मॉडर्न थ्योरी ऑफ मानसून के अकॉर्डिंग देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच अफेक्ट द मानसून सीजन, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द डिफरेंशियल हीटिंग, है ना? तो लैंड वर्सेस सी में डिफरेंशियल हीटिंग विल बी अकरिंग। देन उसके बाद में ये हो गया, समझ गए आप? सो इसमें क्या हो रहा है कि लैंड विल हीट फास्टर दैन ओशन इन समर एंड दिस इज द थ्योरी विच एडमंड हेली हैड गिवन एज वेल। तो एक तो डिफरेंशियल हीटिंग से तो हो ही रहा है कि वार्म एयर राइजेस, लो प्रेशर हो जाएगा, लैंड समर्स में लो प्रेशर हो जाएगा और सीज में इट विल बी हाई प्रेशर, सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर the wind will be blowing. So this we had studied in Edmund Halley's theory as well. Second क्या है, एक और contributing factor क्या है? Continental shape and orography, that is the shape of Himalayas and Tibetan plateau. So according to this देखो western Ghats में क्या होगा, there will be orographic rainfall on the windward sides because वहाँ पे mountain ranges है. So once the this thing rises up, ये क्या, क्लाउड्स विल राइज अप, विंड्स विल हैव टू राइज अप, सो क्लाउड्स विल फॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो बारिश होने का चांसेस है, ठीक है? सो ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी द रेन शैडो रीजन, ठीक है? हिमालयाज पे सिमिलरली क्या हो रहा है, देर इज अ बैरियर, दस ओरोग्राफिक रेनफॉल विल हैपन हियर एंड टिबेटन प्लेट्यू will be a rain shadow area, ठीक है? Now Tibetan plateau also acts as a high altitude heat source, thus intensifying the low pressure, ठीक है? This is something which you need to remember, this is important, ठीक है? नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपर ट्रोपोस्फेरिक सर्कुलेशन विच इज़ वाया जेट स्ट्रीम्स, उसका भी दैट इज़ ऑल्सो contributing factor to monsoons. So what happens is subtropical westerly jet stream. So जो subtropical westerly jet stream, it moves north of Himalayas in summers allowing the onset of monsoons. Whereas जो हमारा tropical easterly jet stream है, it creates an air divergence, upper air divergence, thus enhancing surface low pressure and monsoon strength. ठीक है? So this is very important कि during the summers the subtropical westerly jet stream वो हिमालयाज के नॉर्थ में चलेगा जाएगा, ठीक है? सो इट विल गिव स्पेस फॉर द मॉनसूनल विंड्स टू कम इन, है ना? सो ये याद रखना कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का क्या काम था, to give space to the monsoons in the summers, ठीक है? Now tropical easterly jet stream का काम क्या है? It will be creating an upper air का divergence, thus it will enhance surface का low pressure and thus increase the monsoon strength. So this is important to remember, है ना? Hmm, इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, देखो। हाँ ठीक है, व्हाट इट डज इज, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है उसकी वजह से जो लो प्रेशर बना हुआ था सब कॉन्टिनेंट में ड्यू टू द हीट, इट गेट्स इंटेंसिफाइड, ठीक है? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड दैट एक्ट्स एज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मानसून, ठीक है? तो बस इसका आप याद रखना, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट इंक्रीजेज द लो प्रेशर ऑन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है? तो दोनों, even the westerly jet stream as well as the easterly jet stream, both of them are increasing the monsoon, ठीक है? दे आर बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है? फिर एक सिंथेसाइज्ड इफेक्ट बनेगा इन तीनों को मिला के, a combined effect of differential heating, topographical barriers and upper air circulation, it drives the robust monsoon system, thus bringing seasonal rains into the subcontinent, ठीक है? Now we look at the air mass theory. So what happens is monsoon में there is a seasonal modification of the planetary winds based upon the seasonal migration of ITCC. ITCC पता है, Intertropical Convergence Zone.
सो बेस्ड अपॉन द डिफरेंट सीजन्स, मतलब जहाँ जैसे सन मूव्स है ना, सन मूव्स तो नहीं मतलब वहीं रहता है, बट उसका रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन समर्स, देन इट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन विंटर्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट द ITCZ ऑल्सो मूव्स, ITCZ, ठीक है। सो उसकी वजह से प्लानिटरी विंड्स का भी मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर यहाँ क्या दिया है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट फ्लोज इन द अपर एटमोसफेयर वाइल द साउथ वेस्ट मानसून का जो वेस्टर्लीज है फ्लो बिलो इट, ठीक है। सो देर इज वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पे नीचे यू विल बी हैविंग, ऊपर यू आर हैविंग द ईस्टर्ली फ्लोइंग है ना, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज फ्लोइंग है ना अबव द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। एंड नीचे क्या हो रहा है, नीचे वी हैव द वेस्टर्ली विंड्स है ना, साउथ वेस्ट मानसून्स, दे आर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड दे आर रिजल्टिंग इन मानसून, ठीक है। तो ये दोनों ओवरलेन है, वन इज ओवरलेन इज लाइंग ओवर द अदर, सो इसको ओवरलेन स्ट्रक्चर बोलेंगे, एंड दिस इंटायर थिंग इज नोन एज वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। नाउ वी लुक एट द नेचर ऑफ मानसून। सो there is a seasonal rhythm of Indian monsoon and there are various influences and phases in it, ठीक है। तो मार्च से मई रहेगा, फिर मई से जून, देन you'll have जून में, within जून there will be some phases and then from August to October। यहाँ क्या हो रहा है, मार्च से मई, मई में वी हैव द प्री मानसून फेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, देयर विल बी एन इंक्रीज हीटिंग ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द टिबेटन प्लेट्यू, ठीक है। तो टिबेटन प्लेट्यू भी गर्म हो जाएगा, तो इट विल क्रिएट अ वेरी बिग लो प्रेशर रीजन, सो इट विल अट्रैक्ट विंड्स टुवर्ड्स इट, है ना। तो विंड फिर कहाँ से आएंगी, इट दे विल फर्स्ट फ्लो ओवर द सब कॉन्टिनेंट एंड देन रीच द टिबेटन प्लेट्यू, एंड दैट इज़ वाई टिबेटन प्लेट्यू का गर्म होना इज ऑल्सो गुड फॉर आवर मानसून्स, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज फॉर्म्ड ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, है ना। देन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, इट flows south of the Himalayas. During March to May, it is flowing south of the Himalayas. That is why the monsoons have not yet come. That is why monsoons haven't come arrived yet. ठीक है, तो मार्च टू मई में the south tropical subtropical jet stream will be flowing south of the Himalayas. ये यहाँ लिखा है, STJ blocks the monsoon cell formation, और हाई प्रेशर का जो डोमिनेंस है, इट प्रिवेंट्स मानसून का ऑनसेट, बिकॉज मार्च में इट इज़ फेयरली कोल्ड, ये इन हिमालयन रीजन्स और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इट इज़ कोल्ड, सो देयर विल बी हाई प्रेशर एंड दैट इज़ वाई दिस वोंट कम इन, मानसून winds won't come in, है ना। एंड सब ट्रॉपिकल जेट विल ऑल्सो क्रिएट अ हाई प्रेशर रीजन, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस इज फ्रॉम लेट मई टू अर्ली जून, apparent northward movement of the sun will happen, है ना, it will come over tropic of Cancer, then the southern branch of the STJ, that is the subtropical jet stream, it will shift north of the Himalayas, ठीक है। तो ये नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज चले गया, तो योर इट विल क्रिएट स्पेस फॉर द मानसून सेल, ठीक है। सो इट शिफ्ट्स नॉर्थ ऑफ द टिबेटन प्लेट्यू एज वेल। देन जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, near the it is near the peak position over the Tibetan region, ठीक है। So this is important to remember that gets it reaches its peak position over the Tibetan region, ठीक है। And there is a northward shift of the subtropical jet that which triggers the onset of the monsoon। फिर onset of the monsoon देखते हैं, ये transition phase था अभी जो हमने पढ़ा। Now we'll be looking at the onset. Onset of the monsoon will be in the first week or second week of June, ठीक है। So what will happen here? Easterly jets will form over Indian plains, है ना, और उसके बाद में जो सब ट्रॉपिकल जेट है उसका विड्रॉल हो जाएगा, एंड लो प्रेशर विल इंटेंसिफाई ओवर द इंडियन प्लेन्स एज वेल। देखो क्या क्या हो रहा है, एक तो ईस्टर्ली जेट विल फॉर्म ओवर द इंडियन प्लेन्स, वो रहता है जून में, है ना। एंड व्हाट विल दिस डू, इससे यहाँ लो प्रेशर इंटेंसिफाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस जो सब ट्रॉपिकल जेट है हमारा जेट स्ट्रीम, दैट विल विड्रॉ
है ना, इट विल शिफ्ट नॉर्थ ऑफ टिबेट, ठीक है। सो लो प्रेशर विल इंटेंसिफाई, टिबेटन प्लेट्यू विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग थर्मल लो, दैट इज लो प्रेशर, हाई लो प्रेशर। सो अ मॉनसूनल सेल विल फॉर्म बिटवीन द हाई एंड लो प्रेशर, ठीक है। इंडियन ओशन और टिबेटन प्लेट्यू के बीच में मॉनसूनल सेल विल फॉर्म, ठीक है। एंड दिस विल रिजल्ट इन द ऑनसेट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। सो रेनी सीजन के डायनामिक्स क्या है, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट फ्लक्चुएट्स, है ना, एंड दैट रिजल्ट्स इन द वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल यहाँ पे दिया है, जो सोमाली जेट है दैट इज अ लोअर लेवल ट्रॉपिकल जेट, इट ब्रिंग्स मॉइस्चर फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड इट ऑल्सो फीड्स द मानसून सिस्टम। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये एक सोमाली जेट करके रहेगा जेट स्ट्रीम, एंड दैट विल बी गुड फॉर आवर मानसून। सो इट विल ब्रिंग मॉइस्चर फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड इट फीड्स द मानसून, ठीक है। देन एंड ऑफ मानसून अगस्त टू अक्टूबर में होगा, तो जून में वील बी हैविंग द ऑनसेट, एंड देन जुलाई अगस्त, अगस्त में यू विल बी हैविंग द एंड ऑफ मानसून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टिबेटन प्लेट्यू विल स्टार्ट कूलिंग डाउन, तो जो सब ट्रॉपिकल जेट था हमारा, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट, इट विल शिफ्ट बैक टू, मतलब इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन दैट इज साउथ ऑफ द हिमालयाज, ठीक है। दी आई टी सी जेड विल ऑल्सो शिफ्ट साउथवर्ड्स, और जो सब ट्रॉपिकल हाई है इट विल रिटर्न ओवर द इंडियन प्लेन्स, ठीक है। सो लो प्रेशर हट गया, हाई प्रेशर आ गया ठंडियों में, है ना। दस द मानसून विल वीकन एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइक्लोनिक विंटर मानसून सेल, ठीक है। तो ये उल्टा चीज़ बन जाएगी, है ना। देयर विल बी सिंकिंग एयर, हाई प्रेशर इन द सब कॉन्टिनेंट एंड लो प्रेशर ऑन द इंडियन ओशन। सो नाउ द विंड विल मूव फ्रॉम, इसको नॉर्थ ईस्ट माउंटेन मानसून भी बोलते हैं, है ना। सो विंड विल मूव फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट इनटू द ओशन, ठीक है, एंड दिस विल मार्क द ऑनसेट ऑफ द विंटर सीजन, ठीक है। यहाँ डायग्राम्स में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वी लुक एट द मैकेनिज्म ऑफ इंडियाज, हाँ ये वही उसी को एक्सप्लेन किया है बाय अ डायग्राम। ये मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन समर मानसून और सिंथेसिस, यहाँ पे दिया है कि सीजनल द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विल शिफ्ट ड्यू टू द सरफेस हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ विंटर आई टी सी जेड नीचे रहेगा, वेर एज इन समर्स इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है। समर आई टी सी जेड मानसून ट्रफ रहेगा एंड जुलाई का पोजिशन दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है surface heating and ITCZ shift. So due to the heating up of the surface, a thermal low is being formed here, है ना। In fact even in the Tibetan plateau as well, ठीक है। और जो intertropical convergence zone है वो यहाँ पे ऊपर आ चुका है, ठीक है। एंड इफ़ यू माइट बी रिमेम्बरिंग, हमारा जो इक्वेटर के पास ऐसे होता था ना कि winds were moving from the high pressure to the low pressure equatorial region, ठीक है। तो दीज वर नोन एज ईस्टर्लीज। सो व्हाट हैपेंस इज, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये इक्वेटर के बेसिस पे नहीं चलते हैं, दीज फंक्शन बेस्ड अपॉन द आई टी सी जेड, ठीक है। तो ये आई टी सी जेड ऊपर चले गया तो क्या होगा, ये अगर ऊपर चले गया, सो these winds will have to also enter the northern hemisphere. Once they enter the northern hemisphere, they will get deflected towards the right, ठीक है। and that is why the southwestern monsoon they enter from here, ठीक है। सो दे आर अ पोर्शन ऑफ दोज आर द ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो नीचे से आई थी, बट दे हैड टर्न बिकॉज दे हैव एंटर्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो कोरियोलिस फोर्स के बेसिस पे दिस विल टर्न राइट, ठीक है, इफ इट इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सो यहाँ से आ रहे हैं इसलिए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे वही दिया है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से दिस इज़ द डायरेक्शन, एंड दिस area is known as mascarene high pressure. So this is also important, ये mascarene high और tibetan low pressure thermal low बन जाता है, उसकी वजह से the monsoon is activated, ठीक है। Now we look at the upper air circulation, तो tibetan high and easterly jet. So you know that tibetan plateau will get heated up during the summers,
तो वहाँ पे अच्छा हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन बन जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर जोन बन जाएगा एंड वील बी हैविंग द मैस्करीन हाई ओवर हियर समवेयर हियर, और उससे मानसून विल बी क्रिएटेड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज हैपनिंग, जो ऊपर वाले लेयर्स हैं हमारे अबव द ट्रोपोस्फेयर, वील हैव द जेट स्ट्रीम्स। सो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या होगा, इट विल मूव बियॉन्ड द हिमालयाज। ठीक है, इट विल मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, इनफैक्ट इवन नॉर्थ ऑफ द टिबेटन प्लेट्यू। सो इट विल क्रिएट स्पेस फॉर द मानसूनल सेल। सिमिलरली जो हमारा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, व्हाट विल इट डू, इट विल वो लो प्रेशर को इंक्रीज करेगा, इट विल इंटेंसिफाई द लो प्रेशर ऑन द सब कॉन्टिनेंट एंड दस विल बी बेनिफिशियल फॉर द monsoons. ठीक है, नाउ वी लुक एट द मानसून डायनामिक्स एंड सीजन एंड रेनफॉल। सो मानसून का जब ऑनसेट होता है, देयर इज़ अ क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो। सो मैस्करीन हाई से इंडियन लो तक जा रहा है। ठीक है, सो इट इज़ एस्टैब्लिश बाय द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द मैस्करीन हाई एंड द इंडियन लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज़ ओरोग्राफिक रेन हैपनिंग, ये सब हमको पता चल गया। ठीक है, एंड दीज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम दे विल स्टीयर ट्रॉपिकल डिप्रेशंस, जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इनटू द कंट्री। ठीक है, तो ओडिशा वगैरह में काफ़ी साइक्लोन्स आ रहे होंगे तब। ठीक है, सो दे हैव एक्सप्लेन्ड इट ओवर हियर, ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे दिया है ऑनसेट ऑफ मानसून, व्हाट हैपेंस इज देयर इज एन intense heating, there is intense heating of the Indian landmass in the summers and thus a pressure gradient is created. देन इंडियन ओशन में हाई प्रेशर हो जाता है एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देर इज़ अ लो प्रेशर। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मूव टुवर्ड्स इंडिया, है ना, ये कोरियोलिस फोर्स उनको डिफ्लेक्ट कर देती हैं एज आई शोड यू ओवर हियर। ठीक है, सो दीज ट्रेड विंड्स जो नीचे थी पहले, तो इक्वेटर के नीचे थे, दे वर कमिंग फ्रॉम द साउथ ईस्ट, है ना, and what happens is ITCZ moves above, therefore they'll enter the northern hemisphere. Northern hemisphere पे आने पे they will get deflected towards the right due to the Coriolis force and enter India like this. ठीक है, and after ये वही लिखा है कि they deflect, the Coriolis force deflects winds to the right after crossing the equator, and the southeast trade winds become southwest monsoon winds. ठीक है, नोट क्या करना है, द नॉर्थ वेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस अ यूनिक सीजनल एटमॉस्फेरिक सेटअप। ठीक है, दैट इज लो प्रेशर जोन एट द सर्फेस एंड अ हाई प्रेशर सिस्टम इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये ऑनसेट के टाइम पे हो रहा है बिकॉज वी हैव द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट प्रेजेंट, है ना, वो अभी हिमालयाज के साउथ में ही है। ठीक है, अभी वी लुक एट द रोल ऑफ द intertropical convergence zone. So intertropical convergence zone refers to the low pressure belt which is present near the equator. ठीक है, where the trade winds converge, है ना, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे trade winds will be converging at the ITCZ। ठीक है, then it uh, it undergoes seasonal shifts। ठीक है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे ही रहेगा, इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ ड्यूरिंग समर्स एंड, मतलब हमारा अगर जब समर्स है मई जून में, इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ, वेयर एज ड्यूरिंग विंटर्स दैट इज़ वही सितंबर अक्टूबर में, इट विल मूव टूवर्ड्स द साउथ। ठीक है, तो सितंबर नहीं, मतलब वही जून, जून नहीं, दिसंबर वगैरह में। ठीक है, ITCZ shifts north to the 20 degree to 25 degree north latitude, that is Gangetic plain in the summers, और इससे मानसून ट्रफ फॉर्म हो जाएगा एंड इट स्ट्रेंथन्स द लो प्रेशर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दस पुलिंग द सदर्न हेमिस्फेयर के ट्रेड विंड्स इनटू इंडिया अक्रॉस द इक्वेटर। ठीक है, और इससे सीजनल विंड रिवर्सल होगा एंड देन द ऑनसेट ऑफ मानसून विल हैपन। ठीक है, नाउ रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स देख लेते हैं इन द ऑनसेट ऑफ मानसून। सो वी हैव टू मेन जेट स्ट्रीम्स पासिंग थ्रू आवर कंट्री, एक है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ठीक है, तो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट है, इट इज़ जनरली लोकेटेड साउथ ऑफ द हिमालयाज इन विंटर। ठीक है, अभी इसका विड्रॉल इज़ नेसेसरी फॉर द ऑनसेट ऑफ मानसून्स। ठीक है, सो दिस विड्रॉज जून वगैरह में, विड्रॉज एंड मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज।
ठीक है। सिमिलरली ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है, इट अपियर्स अराउंड 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आफ्टर द STWG withdraws. तो एक बार ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट वंस इट हैज़ withdrawn देन द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट विल अपीयर। ठीक है। It is associated with the burst of monsoon in India. So this is extremely important. ये ऐसे उठा के सवाल पूछ सकते हैं कि burst of monsoon is related to which of the following. So they'll give these two options and you have to answer. ठीक है। So it is the tropical easterly jet which is responsible for the burst of monsoon. ठीक है। Now we'll be talking about the break in monsoon. So break in monsoon क्या होता है? It refers to the temporary dry spell during the rainy season which is primarily due to weak or infrequent rain during storms along the monsoon trough. है ना? इसको ब्रेक बोलते हैं कि बीच में ख़त्म हो गया है ना, 3-4 दिन देवर नो रेन्स। ठीक है। दैट इज़ नोन एज अ टेम्पररी ड्राई स्पेल, ब्रेक इन मानसून। ठीक है। सो वीक स्टॉर्म्स की वजह से हो सकता है नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑफ मानसून ट्रफ which leads to less rainfall in plains and heavy rainfall in Himalayan foothills. That could also be a reason. ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा क्या हो सकता है रीज़न? वेस्टर्न कोस्ट। सो विंड्स विल बी ब्लोइंग पैरेलल टू द कोस्ट इंस्टेड ऑफ perpendicular to the coast. So ideally क्या होना चाहिए? If this is the western coast, the wind should come like here, this है ना। तो यहाँ से क्या होगा फिर? orographic rainfall होगा and the monsoonal winds will enter India. However, what happens is during break in monsoon, ये हमारा अगर पेनिनसुला है, इंडियन पेनिनसुला, the winds will start flowing parallel to the coastline. ठीक है। सो इनसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, नो मानसून, नथिंग रेन, नो रेन विल हैपन। ठीक है। So when this happens, then there is reduced orographic rainfall. ठीक है। So there are three primary reasons. One, first reason है कि कोई जो rain bearing storms है, they are quite weak. That is why there has been a break. Next है कि the northward shift of the monsoon trough. That means जो high pressure area, लो प्रेशर एरिया बना था मानसून ट्रफ, दैट मूव्स फर्दर नॉर्थवर्ड्स। तो हिमालयाज़ के पास में जो हिमालय के फुटहिल्स हैं वहाँ पे एक्सट्रीमली लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ रेनफॉल देयर। बट जो हमारे बाकी का पूरा पेनिनसुला है, इन वहाँ पे पूरा बाकी का सब कॉन्टिनेंट है, उस पर देयर विल बी लेसर रेनफॉल। ठीक है। तो दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न। एंड वेस्ट कोस्ट का तो बता ही दिया। नाउ वील बी लुकिंग एट एल नीनो। सो एल नीनो क्या है? इट इज़ बेसिकली एक कम्प्लेक्स सा फिनोमिनन है एंड उसमें क्या होता है? देयर इज़ अ पीरियोडिक वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन नियर पेरू। सो दिस हैपन्स एवरी 3 to 7 years, है ना। तो यहाँ क्या होगा? अ वार्म करंट विल रिप्लेस द कोल्ड हम्बोल्ट करंट। वी नो दैट हम्बोल्ट करंट फ्लोज पैरेलल टू द साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन, है ना। पेरू वगैरह का जो कोस्ट है उसके साइड में वी हैव हम्बोल्ट करंट, है ना, पेरू, चिली, एंड दैट इज़ वन रीज़न वाई वी हैव द अटाकामा डेजर्ट ओवर देयर। ठीक है। तो क्या होगा? ये हट जाएगा एंड अ वार्म करंट विल रिप्लेस इट। दस वाटर टेम्परेचर विल राइज नियर द पेरूवियन कोस्ट। सो वहाँ पे अगर वाटर टेम्परेचर राइज हो गया, लेट मी जस्ट सी इफ दे हैव अ डायग्राम फॉर दिस। हाँ ये रहा। नहीं ये नहीं है, चलो नहीं है इनके पास। ठीक है। दे डू नॉट हैव अ डायग्राम हियर। ठीक है। नहीं है। आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज हैपनिंग हियर। एल नीनो के केस में सपोज दिस इज द हमारा साउथ अमेरिका है। ठीक है। और यहाँ पे वी हैव ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे कहीं पे वी हैव इंडिया छोटा सा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यूजुअल नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? व्हेन देयर इज़ नो एल नीनो प्रेजेंट, यहाँ पे देयर विल बी वेरी कोल्ड। यहाँ पे कोल्ड स्ट्रीम, कोल्ड करंट है, हम्बोल्ट करंट, दैट इज़ फ्लोइंग अलोंग दिस कोस्ट लाइन। ठीक है। तो ठंडा है यहाँ पे। सो यहाँ पे देयर विल बी अ हाई प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन में क्या होता है? बारिश नहीं होती है। ठीक है। सो बारिश नहीं होगी तो यहाँ पूरा डेजर्ट डेजर्ट है। यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर है। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर हाई प्रेशर है, यहाँ पे देयर विल बी अ लो प्रेशर, देन यहाँ पे फिर साइमल्टेनियसली देयर विल बी अ हाई प्रेशर, और फिर इंडिया में लो प्रेशर रहेगा, एंड दस वी विल बी रिसीविंग मॉनसूनल रेंज यहाँ पे, है ना। दिस हाई प्रेशर इज नोन एज द मैस्करीन हाई। ठीक है, सो दिस इज what happens in a normal year. Now we'll look at what happens in a El Nino year. तो यहाँ पे फिर again we are looking at South America, then you have Australia over here, और यहाँ पे कहीं पे we have India. ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, in this case there is warm current flowing here. ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर बनने से there will be a lot of rainfall in this place. ठीक है, बहुत रेनफॉल हो गई यहाँ पे डिज़र्ट में। ठीक है, एंड यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ऑस्ट्रेलिया में देयर इज़ हाई प्रेशर। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया पे देयर विल बी नो रेनफॉल। ठीक है, पूरा ड्राई रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ हाई प्रेशर है, तो मैस्करीन हाई पे भी बहुत लो प्रेशर रहेगा। ठीक है, सो इट यहाँ का जो लो प्रेशर रहेगा, और यहाँ पे तो है ही थोड़ा बहुत लो प्रेशर है। ठीक है, तो मतलब देयर वोंट बी प्रॉपर movement of winds here, तो the monsoon will be very weak. ठीक है, so this is what happens in an El Nino year. ठीक है, so this is the general explanation, ये हो रहा है यहाँ पे। so it distorts the equatorial atmospheric circulation, it alters evaporation and rainfall patterns globally, it reduces plankton and fish population near Peru, because फिश कब आती है, वो ठंडे पानी में ही आती है, गर्म पानी में नहीं आती वो। ठीक है, देन इट जनरली वीकन्स द इंडियन मानसून, एंड डिलेड मानसून होगा, वीक मानसूनल रेनफॉल होगा, ड्रॉट कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, एंड अ पॉजिटिव Indian Ocean dipole, it can influence and mitigate the drying effects of an El Nino and vice versa also. Negative IOD अगर हुआ तो it will worsen the effect. ठीक है, so Indian Ocean dipole अगर positive है, then it is positive for us also. That is, positive in Indian Ocean dipole is good for us because it results in better rainfall, better monsoons. Whereas a negative Indian Ocean dipole is not so good for the monsoons. ठीक है, now we look at monsoon variability due to extreme rainfall events. So monsoon variability due to climate change है extreme। ठीक है, यहाँ पे we'll be starting with increase in extreme rainfall events, है ना, that is the first consequence of climate change. So nowadays what is happening is there are some days wherein there is extreme rainfall। ठीक है, both extremities of climates are being witnessed right now due to climate change। तो क्या हो रहा है, या तो extreme rainfall होगी या फिर बिल्कुल rainfall नहीं होगी। so extreme daily rainfall का क्या रहेगा, the rainfall might cross 15 centimeter per day। ठीक है, so that is a lot। या 75% in central India, that is increased by 75% in central India। The frequency of rainfall is also increasing। ठीक है, and there are two additional extreme events per decade। so earlier there used to be lesser number of extreme events per decade, now it has increased by 2। ठीक है, so you need to remember कितना, 15 सेंटीमीटर पर डे, और 75% इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 1950 the the amount of monsoon। ठीक है, एंड देर आर पैटर्न क्या बन रहा है आजकल, देर इज़ अ पैटर्न ऑफ शॉर्ट इंटेंस वेट स्पेल्स वेर इन इंटेंस रेनफॉल विल टेक प्लेस इन सम डेज, और बाकी पूरा ड्राई रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स। ठीक है, एंड देर इज़ एन इंक्रीज इन ड्राई स्पेल्स, सो ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग मानसून्स हैव इंक्रीज बाय 27% फ्रॉम 1981 टिल, नहीं 1951 से दे सकते हैं, है ना, 1951 से अभी तक 2011 तक देर हैज़ बीन और 27, मतलब इसको 25 मान लो। ठीक है, सो अराउंड 25% इंक्रीज इन द ड्राई स्पेल ऑफ मानसून। ठीक है,
और 75% इंक्रीज इन द डेली रेनफॉल का लिमिट। सो 15 सेंटीमीटर पर डे से ज़्यादा इट इज़ क्रॉसिंग, ठीक है, ऑन सम डेज। So this is 75% increase as compared to that in 1950। ठीक है, 75-25, that will be easier to remember। ठीक है, now there is a shifting of intra seasonal timeline। so जुलाई में आजकल रेनफॉल होती है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड स्टार्ट होता है उसके बाद में, जुलाई के बाद में, एंड देन अगेन सितंबर में अगेन रेनफॉल टेक्स प्लेस। ठीक है, सो दिस ट्रेंड ऑफ रेनफॉल इज शिफ्टिंग। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज जून में इट यूज्ड टू स्टार्ट, मानसून यूज्ड टू स्टार्ट, और फिर अपना अगस्त तक ख़त्म हो जाता था। नाउ क्या हो गया, जुलाई में स्टार्ट हुआ रेनफॉल, फिर बीच में डिक्लाइन हो गया बहुत ज़्यादा, फिर सितंबर में अगेन इट स्टार्ट्स। ठीक है, दिस इज़ एन इंक्रीजिंग ट्रेंड विच इज़ हैपनिंग नाउ डेज। ठीक है, now there is increased variability as well, so there is greater unpredictability when it comes to the onset timing of the monsoons or the withdrawal timing। ठीक है, सो वेरी मतलब a lot of unpredictability has also started occurring। ठीक है, now we'll be looking at southwest monsoons। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन कब से कब तक है, जून से सितंबर, है ना। तो जून में स्टार्ट हुआ था एंड इट गोज़ अप टिल ये हमें पता ही है। सो इसमें अगेन द सेम थिंग हैज़ बीन रिपीटेड ओवर हियर। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि देर आर बेसिकली टू ब्रांचेस। एक तो होता है अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, और दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच में भी देर आर 3 सब ब्रांचेस। So first of all we have the Western Ghats sub branch। ठीक है, तो वो वेस्टर्न घाट्स की तरफ जाएगा। देन यू हैव नर्मदा तापी वैली सब ब्रांच, इट विल गो डायरेक्टली टुवर्ड्स द नर्मदा तापी वैली, यहाँ से आ जाएगा वो। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज सौराष्ट्र कच्छ सब ब्रांच। ठीक है, सो इट विल गो टू गुजरात। सो दीज आर द 3 ब्रांचेस ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स वाला जो ब्रांच है वहाँ ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा on the leeward side of the ghats and low rainfall will be there। नर्मदा तापी वाली जो सब ब्रांच रहेगी इट विल, उसमें क्या होगा प्राइमरीली, it will move inland by the monsoons will come inside the country, मतलब inside the subcontinent via the नर्मदा एंड तापी वैलीज। ठीक है, और वहाँ पे बस इतना ही दिया है यहाँ पे मेन चीज़। और सौराष्ट्र कच्छ सब ब्रांचेज इन राजस्थान, तो ये हो गया। उसके बाद में वी आर लुकिंग एट द ऑनसेट टाइम्स। ऑनसेट टाइमलाइन क्या है, वही 1 जून में केरला में इट विल अप्रोच, देन 10th और 13th जून के आसपास इट विल कम टू मुंबई कोलकाता, एंड फिर अर्ली जुलाई तक आएगा इंटीरियर पोर्शन में। ठीक है, देन बे ऑफ बंगाल। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि जो तमिलनाडु है उसमें साउथ वेस्ट मानसून डज नॉट इज़ नॉट वेरी मच विजिबल। ठीक है, तो वहाँ पे इट रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एंड वाई इज़ इट सो, बिकॉज ये एक तो सबसे पहले ये थोड़ा सा रेन शेडो एरिया में आ रहा है ना, एंड सेकेंडली बस ये दैट इज़ वन मेन रीज़न। ठीक है, और उसका जो बे, एक और ब्रांच होती है, वील रीड अबाउट दैट एंड आई विल कम बैक टू दिस लेटर। सो आई जस्ट रीड दिस, बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी है। सो व्हाट हैपेंस इज इट स्प्लिट्स अंडर हिमालयाज एंड नॉर्थ वेस्ट का थर्मल लो, एंड it flows westward along the Ganga plains up to Punjab, and on the northeast it goes up to the Brahmaputra valley। ठीक है, वहाँ पे इफ़ दे फाइंड एनी हिल्स लाइक गारो खासी हिल्स, तो वहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। सो एन एग्जांपल इज मौसनरम। ठीक है, वहाँ पे हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है, एंड ये वही दिखाया है कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक पंजाब जाएगा
and the other one will go to the northeast, है ना. However, the problem here is कि जो तमिलनाडु है, it is parallel to the Bay of Bengal branch, है ना, and it is in the rain shadow of the Arabian Sea branch, so it remains relatively dry. ठीक है, ये था हमारा साउथ वेस्ट मानसून वाला पोर्शन. ठीक है. नाउ वी बी लुकिंग एट द retreating monsoon which is also known as the northeast monsoon. ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन इज वहाँ पे ऊपर अभी पहुँच गए हैं सारा मानसून के विंड्स, है ना. नाउ विड्रॉल विल स्टार्ट, सो अर्ली सितंबर में टिल एंड ऑफ सितंबर द विड्रॉल ऑफ मानसून विल स्टार्ट. ठीक है, फिर अर्ली अक्टूबर, अर्ली नवंबर और इनफैक्ट अब अप टिल दिसंबर तक पूरा ही ख़त्म हो जाता है. ठीक है, द इंटायर मानसून सिस्टम रिट्रीट्स. ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया, वेदर की फीचर्स क्या है रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे. रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे वी हैव हाई प्रेशर इन द सब कॉन्टिनेंट, सो क्लियर स्काईज रहेंगे, ह्यूमिड ओप्रेसिव अक्टूबर हीट रहेगी. ठीक है, रैपिड कूलिंग इन नॉर्थ इंडिया, ये सब चीज़ें. नाउ साइक्लोन्स के बारे में देख लेते हैं. रिट्रीटिंग फेज में number of cyclones originate in the Andaman Sea. So they cross over the eastern coast and come into India. ठीक है, ओडिशा वगैरह में काफ़ी होता है. इम्पैक्ट है वही गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टास, वहाँ पे a lot of impact of cyclones is seen. It also impacts West Bengal, Myanmar, Bangladesh, etc. and even the Coromandel coast. And बस इतना ही याद करना है. ठीक है. Next, we'll look at the यहाँ क्या explanation दिया. The southwest monsoon is a seasonal rain system that brings the majority of annual rainfall to the subcontinent. Duration है वही June to September. Mechanism we have already read about it. बस ऐसे देख लेते हैं. Moisture laden winds originate over the Indian Ocean. They blow towards the Indian landmass due to low pressure development over North India. ठीक है, so that is all what happens there. ठीक है. Now we'll be looking at the pre-monsoon local winds और फिर इंडियन ओशन डाइपोल और मास्करीन हाई के बारे में देख लेंगे. सो प्री मानसून लोकल विंड्स ऑफ इंडिया कौन से हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे कॉमन है वी हैव लू. ठीक है, लू इज़ वेरी फेमस. लू रेफर्स टू हॉट एंड ड्राई विंड जो अप्रैल टू जून के बीच में यू विल गेट टू सी. यहाँ पे आफ्टरनून में देयर इज़ अ लॉट ऑफ गस्टी विंड एंड इट मे कॉज अ हीट स्ट्रोक. ठीक है, देन यू ऑल्सो हैव आंधी. आंधी रहता है डस्ट स्टॉर्म्स बिटवीन मे टू जून एंड दीज आर जस्ट सडन डस्ट स्टॉर्म्स विच लोअर द विजिबिलिटी. ठीक है, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया में रहेगा ये सब. ठीक है, ये दोनों हो गया. उसके बाद में वी हैव चेरी ब्लॉसम और ब्लॉसम शावर्स. ये कहाँ पे होता है, इसको कॉफ़ी रेन भी बोलते हैं एंड दिस हेल्प्स द कॉफ़ी फ्लावर्स ब्लॉसम. ठीक है, सो कॉफ़ी कहाँ पे, कर्नाटका केरला साइड. ठीक है, सो दैट इज़ वेयर दिस हैपन्स, है ना. ब्लॉसम शावर्स या चेरी ब्लॉसम एंड दिस इज़ प्राइमरली फॉर कॉफ़ी फ्लावर्स. ठीक है. देन वी हैव मैंगो शावर्स. मैंगो शावर्स इज अगेन अ प्री मानसून रेन. It happens in late April till June and it helps in the early ripening of mangoes. तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले रीजन में है ये मैंगो शावर्स. ठीक है. देन काल बैसाखी, उसको नॉर्वेस्टर्स भी बोलते हैं. सो दीज आर जस्ट वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स और अप्रैल से मई के बीच में यू विल सी दिस इन वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल साइड में. ठीक है. एंड इवनिंग में स्टॉर्म्स आते हैं, रेन, हेल, इट डैमेजेस क्रॉप्स, है ना. और तो ये सब होता है. हाउएवर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर जूट एंड राइस और इसको बरदोली चीरहा भी बोलते हैं इन असम. हाउ विल यू रिमेंबर इट. बरदोली सत्याग्रह कहाँ हुआ था, इट वॉज इन असम इट सेल्फ, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर बरदोली चीरहा अगेन असम. ठीक है, तो बस इसमें इतना ही लर्न करना है. मैंगो शावर्स हो गया साउथ इंडिया, चेरी ब्लॉसम अगेन साउथ इंडिया, लू आंधी नॉर्थन इंडिया. ठीक है. नाउ वी विल बी लुकिंग एट द इंडियन ओशन डाइपोल. सो इसमें क्या होता है, इंडियन ओशन डाइपोल बेसिकली रेफर्स टू द
सी सी सरफेस टेम्परेचर में जो भी अनोमली है उससे इंडियन ओशन डाइपोल बनता है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे एक वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडियन ओशन है और दिस इज द ईस्टर्न पोर्शन। ईस्ट में वी हैव द बे ऑफ बंगाल एंड इन द वेस्ट वी हैव आर अरेबियन सी। ठीक है, इन दोनों के बीच में देयर इज ऑफन अ टेम्परेचर डिफरेंस। उनके सी सरफेस टेम्परेचर्स में देयर इज ऑफन सम डिफरेंस एंड दैट इज नोन एज द इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेजेस ऑफ आईओडी, देखते हैं फेजेस ऑफ द इंडियन ओशन डाइपोल। सो अगर वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर है अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल साइड में इट इज़ कूलर, देन इट विल बी नोन एज अ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, वेराज इफ इट इज़ वार्मर इन ये इंडोनेशिया वाला एरिया बे ऑफ बंगाल यहाँ पूरे एरिया में एंड इट इज़ कूलर इन अरेबियन सी एट्सेट्रा, देन we'll call it a negative Indian Ocean dipole. Now remember that जो positive वाला है that is positive और beneficial for our Indian monsoon. ठीक है, so it is good for the monsoon. ठीक है, positive से good you can remember, है ना। तो यहाँ क्या होगा, जैसे पॉजिटिव आईओडी में देर विल बी इनहांस evaporation over the Arabian Sea, more moisture will supply to India होगा, है ना, and they will be favorable, this will be favorable for a strong Indian monsoon। ठीक है, now when you see the negative Indian Ocean dipole उस केस में क्या रहेगा, इंडोनेशिया जो रहेगा इंडोनेशिया वाला एरिया इट विल बी वार्मर एंड रेनियर। ठीक है, सो दे विल बी अ लॉट ऑफ रेन देयर एंड दिस विल वीकन द इंडियन मानसून कंडीशंस। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद में वी लुक एट द एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट, इक्विनो बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन ऑसिलेशन। सो दिस इज अ प्रेशर ऑसिलेशन विच अकर्स बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ठीक है, इसमें क्या है, पॉजिटिव इक्विनो में क्या होगा, देयर विल बी एन एनहांस्ड कन्वेक्शन नियर अफ्रीकन कोस्ट बिकॉज यहाँ पे इट इज़ हॉटर। ठीक है, तो लो प्रेशर बन जाएगा एंड दिस विल रिजल्ट इन रेन्स ऑन द अफ्रीकन कोस्ट and there will be suppressed convection near Sumatra because of the colder water present there। ठीक है, तो this will create a high pressure region and this supports the positive Indian Ocean dipole। ठीक है, and it strengthens the monsoon rainfall over India। तो ये भी जो positive रहेगा, positive equino is also good for our monsoons। ठीक है, so both positive IOD as well as positive equino are good for our monsoons। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए ये किस किस के बीच में है, दिस इज बिटवीन वही बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी बोल सकते हैं या फिर अफ्रीकन कोस्ट के पास एंड सुमात्रा के पास में। ठीक है, नेक्स्ट है रूल ऑफ आईओडी इन इंडियन मानसून। सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि पॉजिटिव आईओडी में वील हैव बेटर मानसून, नेगेटिव में वील हैव अ वीकर मानसून। ठीक है, नाउ वी लुक एट द मैस्करीन हाई एंड द सोमाली जेट स्ट्रीम। सो सबसे पहले जो सोमाली जेट स्ट्रीम है वो इट इज़ acting as a conveyor belt for moisture laden winds। ठीक है, so it basically propels the winds across the equator, है ना, and it helps to improve the monsoon, it strengthens the monsoon। ठीक है, so this is good for our monsoons। then mascarene high refers to the high pressure which is there in this ocean, Indian Ocean। ठीक है, अगर मैस्क्रीन हाई है, HP है, हाई प्रेशर है, देन यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, सो यू विल गेट गुड मानसून्स इन इंडिया। हाउएवर इफ वी हैव अ वीक मैस्क्रीन हाई देन पुअर मानसून्स विल रिजल्ट। ठीक है, नाउ द इंटेंसिटी ऑफ द मैस्क्रीन हाई विल डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मानसून। ठीक है, ये पता होना चाहिए। नाउ मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर वेदर इन इंडिया वो देख लेते हैं। सो इसमें क्या हो रहा है, रुको,
तो इसमें क्या होता है देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ विंटर वेदर इन इंडिया में वील टॉक अबाउट द सरफेस प्रेशर एंड विंड्स, है ना। तो यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है सेंट्रल एशिया तिब्बत में, है ना। देन ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास एग्जिस्ट ओवर देयर, देन देयर इज अ कॉन्टैक्ट जोन विद ट्रेड विंड्स ओवर हियर, और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोल्ड एयर फ्रॉम हाई प्रेशर फ्लोज साउथ एंड कॉन्टैक्ट जोन विद ट्रेड विंड्स इज अनस्टेबल, ठीक है। देन जेट स्ट्रीम्स और अपर एयर सर्कुलेशन को देख लेते हैं। वहाँ पे क्या होगा, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, इट इज़ नोन एज द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो इट विल गेट बाइफर्केटेड नियर द हिमालयाज, है ना। तिब्बतन प्लेट्यू इज़ द वन विच बाइफर्केट्स इट, ठीक है। तो नॉर्दर्न ब्रांच वहाँ वहीं चले जाएगी मंगोलिया साइड, और जो सदर्न ब्रांच है दैट कम्स इन टू इंडिया, ठीक है। एंड इट इन्फ्लुएंसेस द विंटर वेदर हियर। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, we have the southern branch which is entering India, है ना, and northern branch is going away, ठीक है। now उसके अलावा क्या है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है हमारे पास। सो उसमें क्या होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में दे विल बी कैरीड बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, है ना, विच विल बी बिलो द हिमालयाज, ठीक है। और वो जो पोर्शन है सदर्न ब्रांच है उसका, एंड इट विल एंटर नॉर्थ इंडिया, है ना। इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया से इट विल एंटर। सो पंजाब साइड में यू विल सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ thunderstorms and even rain happens there due to these western disturbances, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ड्यूरिंग द विंटर्स ऑल्सो दे कम, so these are destructive high wind velocity and heavy rainfall भी होता है इनके साथ, एंड दे अफेक्ट ओनली द कोस्टल एरियाज, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रहते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट की कंसेप्ट्स इन ग्लोबल एयर सर्कुलेशन। सो वी आर लुकिंग एट द जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। वैसे तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट जेट स्ट्रीम्स, बट वी विल बी लुकिंग एट what impact they have on the Indian monsoons and Indian weather system, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे मेजर जेट स्ट्रीम्स दिया है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, बट इसे देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, दिस इज़ द वन विच हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन इंडियन मानसून, ठीक है। फिर एक इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम है, अफ्रीकन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, फिर एक और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, देन वी हैव द पोलर जेट स्ट्रीम। यहाँ पे पोलर नाइट जेट स्ट्रीम एंड पोलर जेट स्ट्रीम है, ठीक है। So these jet streams are basically narrow, fast-moving air currents which are located at high altitudes above the troposphere होते हैं usually, ठीक है। So they steer weather systems and transport heat and momentum, influence storms, tracks and climate patterns globally, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं उनके अंडर। So we look at the impact of jet streams on the mountains. So the first thing which happens, देखो सबसे पहला वाला जो जेट स्ट्रीम विच हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट इज द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ठीक है, विच मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एंड द सेकेंड वन विच हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर मानसून इज द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट विच मूव्स ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। दोनों का पता ही होगा, है ना, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस, वी विल जस्ट रिपीट इट once again. It flows south of the Himalayas during the winters, है ना, and during the summers what happens is it makes space for the monsoonal cell and moves towards north of the Tibet plateau, ठीक है। So it acts as a release valve and creates an upper air vacuum, ठीक है, and moves north। तो combined effect क्या है, एस टी डब्ल्यू जी का विड्रॉल और टी ई जी का फॉर्मेशन आर क्रिटिकल फॉर द ऑनसेट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मानसून, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का कैसे चलता है। सो फॉर्मेशन मैकेनिज्म इसका ये है कि जो टिबेटन प्लेट्यू है इट गेट्स हीटेड अप वेरी मच ड्यूरिंग द समर्स, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर रीजन विल बी क्रिएटेड, ठीक है ना। यहाँ पे लो प्रेशर नीचे लैंड पे लो प्रेशर रहेगा, बट ऊपर
ट्रोपोस्फेयर में देयर विल बी हाई प्रेशर बिकॉज अ लॉट ऑफ एयर विल हैव बीन अक्यूमुलेटेड नीचे से ऊपर आ आके, है ना? तो ऊपर हाई प्रेशर बन गया है, ठीक है? एंड वहाँ से फिर दैट causes the tropical easterly jet to pass through India. So it creates an upper air divergence and thus it pulls air up, thus intensifying the low pressure area. ठीक है, तो एक क्या होता है यहाँ पे देखो, इंडिया में लो प्रेशर है पहले, है ना? और हीटिंग के वजह से लो प्रेशर इज इंक्रीजिंग, बट व्हाट हैपेंस इज इफ दिस इज द लैंड, लैंड पे लो प्रेशर है, यहाँ ऊपर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जा जाके हाई प्रेशर हो जाएगा, है ना? बिकॉज वो यहाँ से जो गर्म हवा है इट इज़ राइजिंग अप, है ना? हॉट एयर इज राइजिंग अप एंड इट इज़ गेटिंग accumulated here. It may be moving on the sides, but still a major portion of it is being accumulated here. So it is creating a high pressure. तो अभी क्या होगा, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है इट विल कम और ये हाई प्रेशर एरिया को ऐसे पुश अवे कर देगी, ठीक है? सो इट विल पुल द एयर अप, यहाँ पे ऐसे कर दिया तो यहाँ पे अगेन अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड, देयरफॉर सिंस मतलब कि वहाँ पे भी कम हो गया, सो व्हाट विल हैपन इज more amount of air from high pressure areas will come to this low pressure area, फिर यहाँ पे से ऊपर चले जाएगा, फिर यहाँ से वो हटाते रहेगा ईस्टर्ली. So this type of a cycle will be formed due to the tropical easterly jet, ठीक है? It also strengthens the mascarene high. क्या होता है, जो डिसेंडिंग एयर है it strengthens the mascarene high pressure, thus pushing stronger moisture laden southwest monsoon winds back into India. ठीक है, तो कंबाइंड इफेक्ट क्या है, एस टी डब्ल्यू जी का विड्रॉल एंड टी ई जी का फॉर्मेशन आर क्रिटिकल फॉर द ऑनसेट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियन मानसून, ठीक है? सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ वी विल बी लुकिंग एट Walker circulation, El Nino and La Nina. So I have already explained this to you via a diagram. I had made the diagram myself. फिर भी इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो वॉकर सर्कुलेशन में क्या होता है, नॉर्मल स्टेट के केस में देयर इज़ अ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन, इक्वेटोरियल पैसिफिक, दैट इज़ द पैसिफिक ओशन का पार्ट विच इज़ नियर द इक्वेटर, ठीक है? तो जो वेस्टर्न पैसिफिक है इट गेट्स वार्मर सी सर्फेस टेम्परेचर और जो ईस्टर्न पैसिफिक है इट गेट्स अ कूलर सी सर्फेस टेम्परेचर, ठीक है? सो अ प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड बिटवीन द टू, है ना? सो लोअर प्रेशर विल बी देयर इन वेस्टर्न पैसिफिक एंड हायर प्रेशर इन द ईस्टर्न पैसिफिक, ठीक है? ये नॉर्मली होता है एंड आई हैड टोल्ड यू हाउ दिस हैपेंस कि पेरू के पास में देयर इज़ कोल्ड वाटर तो हाई प्रेशर रहता है, देन ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर है, फिर मैस्क्रीन हाई पे हाई है एंड अल्टीमेटली इंडिया में लो है. सो इट इज़ ईजी टू इंश्योर के मानसून चल रहे हैं, ठीक है? So there are surface winds also, trade winds east to west. Warm air rises over western Pacific, leads to heavy rainfall, and it descends over eastern Pacific, leading to dry conditions. So I have already explained this via the diagram. एल नीनो के केस में क्या होगा, जो हमारा पेरू के पास में cold current था that will get subdued and instead a warm current will come up. So that will increase the temperature in the coastal area, which will further cause evaporation and कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है? तो ये होने से अ हाई प्रेशर नहीं, अ लो प्रेशर विल बी फॉर्म्ड इन दिस एरिया, ठीक है? हाई प्रेशर विल बी एट ऑस्ट्रेलिया, लो प्रेशर एट मैस्करीन हाई, है ना? एंड दैट इज़ वाई मानसून विल गेट वेरी वीकेंड इन इंडिया, ठीक है? सो ड्रॉट लाइक कंडीशंस में अकर इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. देन इसका एक इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे होता है. इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड रेनफॉल अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, ठीक है? आई जस्ट टोल्ड यू कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी वहाँ पे बिकॉज द कोस्ट्स आर वार्म, है ना? दे आर वार्म वाटर देयर, ठीक है? देन वी लुक एट ला नीना. ला नीना इज़ लाइक द नॉर्मल स्टेट ओनली, बस थोड़ा सा इंटेंसिफाइड रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे देयर विल बी अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स, enhanced water accumulation in the western Pacific, ठीक है? सो इट विल लीड टू, since it is slightly stronger that is why it will lead to more rainfall, ठीक है?
So Eastern Pacific will become colder than normal. That is Australia वगैरह है ना. So effect क्या है? Effect is increased rainfall over Southeast Asia and India, and flood-like conditions may also be possible, and drier conditions will be found along Western America. ठीक है, ये हो गया. This is the diagram shown. Now we look at Madden-Julian oscillation. This is also important. ठीक है, इसकी में क्या होता है, देखो मैकेनिज्म क्या है. दिस इज बेसिकली एन ईस्टवर्ड मूविंग पल्स ऑफ कन्वेक्शन इन द ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिकल रीजन में एक कुछ भी थोड़ा साइकिल टाइप है which moves towards the east. So what you need to remember is Madden will be moving towards east. How will you remember this? देखो हमारे इंडिया में what happens is ब्रेन ड्रेन है ना. ब्रेन ड्रेन के अंदर क्या होता है, पीपल गो टू द वेस्ट. ठीक है. हाउएवर कोई पर्सन मैड है, ये बस मैं लर्न करने के लिए बता रही हूँ. देर इज़ नो सिग्निफिकेंस टू वट एवर आई एम सेइंग. ठीक है, दिस इज जस्ट अ ट्रिक. तो someone who is mad से madden, someone who is mad, they will, instead of moving towards the west, that is western countries, European countries, they will move towards the east. ठीक है, तो ऐसे करके you can remember it कि madden Julian oscillation moves towards the east. ठीक है. It influences tropical rainfall distribution, modulates intensity and duration of monsoon, strengthens or weakens the monsoonal winds depending upon the phase. ठीक है, और इसका phases and effects क्या है? There is an active phase जहाँ पे क्या होता है, there is enhanced convection, increased rainfall over the Indian subcontinent, and it supports the progression of monsoon. ठीक है, this is the active phase of MJO. उसके बाद एक सप्रेस्ड फेज रहता है जहाँ पे देर इज़ रिड्यूस्ड कन्वेक्शन and drier conditions as well, and this may result in possible delay in the onset of monsoon. ठीक है. So you need to remember the active phase and passive, that is the suppressed phase of the Madden-Julian oscillation, है ना. तो बस यही आपको लर्न करना है. एक्टिव फेज मतलब एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहने से देयर विल बी इंक्रीज्ड रेनफॉल. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. और पैसिव या सप्रेस्ड फेज में देयर विल बी डिले इन मानसून का ऑफसेट. ठीक है, तो लोअर अमाउंट ऑफ मानसून विल हैपन, है ना. इसके अलावा दे विल बी एन इन्फ्लुएंस ऑन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एज वेल. So it can either promote or inhibit the cyclogenesis, that is the process of formation of a cyclone, that can either be inhibited or promoted by a tropical cyclones. ठीक है, and the cyclone activity depends upon Madden-Julian oscillation का phase. ठीक है, ये हो गया. तो एक्टिव फेज एंड सप्रेस्ड फेज वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट, है ना. अभी देखते हैं, we'll just understand how this functions. So MJO का mechanism, so it is a pulse of convection, है ना, and it moves towards the east. Eastward propagation है इसका. ठीक है. एक्टिव फेज में there will be enhanced rainfall and convection, strengthened monsoonal winds, and promotes cyclogenesis. Whereas in the case of the suppressed phase, what will be happening? There will be drier conditions, weakened monsoonal rainfalls, and it inhibits cyclogenesis. ठीक है, यहाँ पे वही दिखाया, एक्टिव फेज में मानसून ज़्यादा हो रहा है, सप्रेस्ड फेज में देर इज़ नो मानसून, मतलब कम होते जा रहा है. ठीक है. एप्लीकेशंस क्या है, वही एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, इनके बारे में पता चल जाता है. It is crucial for understanding seasonal variability in climate, affecting atmospheric circulation, sea surface temperatures, and moisture transport globally. ठीक है. So ये हो गया. Now we had left some questions about. We'll be doing those first. Wait a second. ये रहे, है ना. We had left these two questions, and we'll complete these now. Wait a second. हाँ. With reference to the Indian Ocean dipole, sometimes mentioned in the news, while forecasting the Indian monsoon, which of the following statements are correct?
The Indian Ocean dipole phenomenon is characterized by a difference in the sea surface temperature between the tropical western Indian Ocean and the tropical eastern Pacific Ocean. नहीं, ऐसा नहीं है. It is both western Indian Ocean and eastern Indian Ocean. ठीक है, तो first statement will be wrong here. Second क्या है, the IOD phenomenon can influence an El Nino's impact on the monsoon. Yes, it can. ठीक है, ये जेनरिक स्टेटमेंट है, कैन लिखा है, सो इट डेफिनेटली कैन. ठीक है, सो द आंसर शुड बी टू ओनली. नेक्स्ट है, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. सो इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन के मानसून, सो द आंसर विल बी मानसून. ठीक है, सो दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन. सो वी आर डन विद दिस टॉपिक, क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ठीक है, थैंक यू.